اگر میں غلط نہیں تو 650 سال کا عرصہ کوئی اتنا ہی ہے اوکے اگر میں غلط ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو رسول اللہ کے بعد ابھی جو ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کتنے سو سال بعد، 1300 سال 1400 سال بعد. اگر 400 ہجری کا یہیں پر ہی تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے. مطلب یہ ہو گیا کہ جو ہمیں مطلب ملتا ہے کہ وہ مطلب 2-3 سال سے 100 سال سے تو اوپر ہی لگتا ہے عرصہ، ایسی بات ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اتنی زیادہ فکر کیا پڑی ہوئی ہے؟ آپ کے اتنے جلدی تو کوئی نہیں آنا کہ صبح شام ادھر انبیاء آ رہے ہیں. یہ ایک سنیں نا، بات تو سن لیں پوری، ابھی سن تو اصل میں لینا. یہ بات تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. اچھا سن تو لینا. تو بات ہی اب غلط دیکھیں کر رہے میری یہ بات بھی تو کرنے دیں، آپ اپنی جواب دیں. یہ بندہ بھی اچھا مجھے یہ بات مجھے بتائیں، لاہوری لگ رہا ہے. ٹھہریں جی، تو خلیفہ صاحب ایک منٹ ٹھہرنا. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو اتنا کیا فکر پڑ گیا ہے صبح شام؟ دیکھیں آج کل کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی، آپ یہ دیکھیں کس نے آنا ہے نہیں آنا. اللہ نے چاہا تو آج سے 100 سال بعد ان سب لوگوں پہ قیامت آ چکی ہوگی ہم پہ. ہیں. مطلب اچھا کہ ہم مجھے سب یہ لوگ بات ختم ہوں گے، ایک نئی بتائیے دنیا گا ہوگی. کہ سنیں تو حضرت صحیح نا. سن تو وہ لینا حضرت سن تو عیسیٰ نے لینا. وہ سن تو بات لیں تو کرنے حضرت دیں، عیسیٰ آپ نے نے بات آنے والے ابھی نبی سوال کی کیا ہے، پیشگوئی جواب ہی کی نہیں تھی نا. دیتے، سن تو پھر لینا کہتے ہیں ہم بولتے ہیں. ناصر بھائی ٹھہر تو جائیں. آپ وہ غصہ یار کر رہے بات ہیں. تو پوری کرنے دینا. اچھا غصہ نہیں کرنا. وہ نہیں، غصہ ریلیکس نہیں کر رہا. ناصر صاحب پانی شانی اللہ پیئیں، لے کیا او ہو گیا خدا یار؟ دا میرے واسطہ آتے ہی گل آپ تے کا بی کرن. پی آئی ہو گیا. دیکھیں او آپ نے نہیں، کہا کہ آنے والا پیشگوئی نہیں وہ کرے گا. مجھے آپ تو گل یہ تو کہنے کر، کی او کوشش کر رہے ہیں. بات تو کرنے دینا خدا واسطہ. اس لیے تو آپ لوگ سنتے میں آپ کی ہمت نہیں ہے. مجھے اچھا یہ بات بتائیں، کریں آپ سن لینا نشان صاحب. کریں کریں. مجھے یہ بات، میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ اتنا عرصہ لگتا ہے، ادھر کوئی یہ تو نہیں کہ انبیاء 10 سال 5 سال بعد آ رہے ہیں کہ اتنا کون آئے گا نہیں آئے گا. وہ خدا را آپ چھوڑیں، یہ ایک نئی دنیا ہوگی آگے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو کوئی پابندی نہیں، وہ اور بھیج دے گا. جو آئے گا اس نے ہم یہ بتانا نہیں ہے، کہہ رہے جو آیا ہوا ہے ہم اس یہ کو نہیں تو کہہ رہے مانے نہیں آپ. نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے جو آ رہے ہیں. یہ یہ تو کدھر وہی لکھی بات ہوئی ہوگی بات؟ کہ حضرت عیسیٰ سے بھی السلام علیکم اس ورحمۃ وقت اللہ کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وبرکاتہ. آپ اگلے والے آنے والے کی پیشگوئی کیوں وعلیکم کر رہے ہیں، السلام. آپ اپنے آپ کی طرف توجہ دیں. تو یہ تو ناصر بتائیے، آپ نے تو وہ سوال کر دیا، تو غلط سوال کیا آپ ذیشان بھائی، او میرے پیارے بھائی، او نے. جی میرے بھائی سونے، جی او جی میرے کوڑ، او میرے مکھن. جی 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 جی. اچھا، کب سے نیچے باجی سوال پوچھ رہی ہیں میں نے دیکھا کہ نہیں. انبیاء علیہ السلام کی جو عزت و تکریم ہے وہ سب کی برابر ہے یا کسی کی بڑھ کے یا کسی کی کم ہے؟ کوئی پتہ نہیں. جی جی میں بتا دیتا ہوں، بڑھ کے ہے اور کسی کی کم ہے. جی آپ کے نزدیک مثال کے نہیں ہے؟ طور پر مثال کے طور پر ہمارے نبی جو ہیں وہ تمام ہوں، انبیاء کے سردار ہیں. اور ان کی عزت و تکریم میں کسی اور نبی کی شان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، اس کو واضح کریں. آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم سب انبیاء سے بڑھ کر ہے. اب ان کی عزت و تکریم کو بڑھانے کے لیے یا ان کی عزت و تکریم کو بات بیان کرنے کے لیے کسی اور نبی کی شان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، میں اس کا جواب جی ضرور دینا چاہوں گا جناب. جی ضرور دیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا عقیدے کے اوپر. مثال بھائی میں آپ سے نہیں جی کہہ رہا، میں اس کو آپ کو ایک اور طرف سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر جی جو کرسچن ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، ہوں ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ اسٹرانگ پاور اور ہر طرح کے ان کے پاس معجزے، وہ تمام انبیاء پر سبقت لے جاتے ہیں. اور جب ہم یہ اچھا کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں گستاخی کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اچھا ٹھیک ہے، اب وہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں نا. ہوں ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہو آپ کرسچنز فرشتوں کی نبی گستاخی، مانتے بات ہیں سنیں حضرت خلیفہ عیسیٰ وقت کو. صاحب، خلیفہ وقت صاحب رک جائیں، پلیز رک جائیں. جواب دینا جی دیجیے. نہیں میوٹ بولے کریں، نا، میوٹ جواب کریں دینا. پہلے پیارے بھائی. کرسچن جو نہیں ہیں میں وہ ایسے نبی بات نہیں مانتے ہیں حضرت کرتا. عیسیٰ علیہ اچھا السلام میں کو. کون سے 20 کرسچن ہیں گھنٹے بھائی؟ بات دکھائیں سنتا مجھے. ہوں، صاحب آپ ایک سارے سیکنڈ نہیں اکٹھے سن ہو کے سکتے. پہ جاتے یار ہو. ایک کام کوئی کریں، نظام یار ہے. ایک کام کریں، نہیں ایک اوپن سیکنڈ ایزی ایک بھائی. سیکنڈ سارے خاموش ہو ان جائیں، کو ایک سیکنڈ کرسچنس کے ایک عقیدے سیکنڈ پتہ ہے کہ ایک کون سی سیکنڈ زبانی ایک جمع سیکنڈ سارے کرتے ہیں. خاموش ہو یہ جائیں. خلیفہ خلیفہ وقت نے نہیں صاحب، چپ ہونا. احمد صاحب، خلیفہ صاحب سارے خاموش ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں اگر انگلکا بھائی نے کسی سے بات کرنی ہے تو سارے ایک ساتھ نہ شروع ہو. کوئی ایک بھائی آپ میں سے، خلیفہ وقت بھائی آپ، ساحل بھائی آپ، یا ذیشان بھائی آپ، کوئی ایک، یا عثمان بھائی، کوئی ایک آپ میں سے چاروں میں سے کوئی ایک اپنا نام پیش کر دیں، ان کے ساتھ بات کر لے. ایسے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی بیچ میں جب سارے بولتے ہیں تو ساحل پلیز. بھائی اوپن بات کریں گے. ایزی بھائی میں ایک ساحل بھائی بات ایک کریں منٹ، گے. ایک انجلکا خلیفہ صاحب بھائی. رک جائیں، ہمیں جی تو آپس میں ڈیسائیڈ کر لینے اور دینا. ویٹ ڈیسائیڈ تو آپ کر کریں لیں، نا. ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن اوپن ایزی بھائی آپ ایک آپ اور آگے بات ہیں، کر دیں اب آپ کہ آگے جب ہیں، کوئی میں جواب دے میں رہا ہوں خلیفہ بخش اچھا صاحب جی ایک کیوں منٹ نہیں ہوल्ड ٹھیک کر ہے، لیں. جب میں جواب دے رہا ہو تو ہمیں آپس ہاں میں ٹھیک ابھی ہے. آپ کو جواب دینے کا پورا موقع ملتا ہے. ویٹ کر لیں، پہلے مجھے اور ساحل بھائی کو آپس میں ڈیسائیڈ کر لینے نا. ساحل بھائی بات کریں گے، کیوں ساحل بھائی آپ بات کر لیں گے نا؟ جی جی ضرور ضرور. بس زبردست. چلے ساحل تو بھائی، ٹائم ہے آپ صرف کے اور پاس تو صرف آپ بتائیں، کہیں یہ نہ کیونکہ ہو کہ ٹائم نہ ہو پھر آپ نکل جائیں. جی اوپنائز بھائی، میں صرف ایک چھوٹا سا بات بس جی اپنے جی. بھائی کو بتا دوں. ساحل بھائی آپ نے بات کرنی ہے جماعت احمدیہ عالمگیریہ کے ساتھ یا لاہوریوں کے ساتھ؟ نہیں
کرنی تو عالمگیریہ کے ساتھ ہی آپ کو نکل ہاں کوئی تو اور پہلے کنفرم کریں نا کہ بندہ عالمگیری سے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوپن آئز بھائی میرے پاس اچھا یہ تھوڑا بہت سا اچھا ٹائم کیا آپ نے. میرا بھی ایک منٹ سن لینا, ہم نے بھی صلاح کرنی میں ہے نا ٹائم آپ نے تو جیسے بتا کہ دوں نا ایک اوپن منٹ ہے آئز بھائی نا, کو ٹائم بتا دوں ایک منٹ ہمیں بھی چلے دیں. آپ میں سے ٹائم تو بتا دوں ٹھیک اپنا ہے کہ آپ میرے میں پاس سے نہیں بتا ٹائم دیں. نہیں ناصر بھائی نے ہاں, بات کرنی ہے, انگلیکا بھائی نے بات کرنی ہے, کوئی نہیں کرنی ہے. نہیں احمد بھائی, نہیں ہم نے بھی دیکھنا نا کس نے بات کرنی ہے. اچھا احمد صاحب آپ نے بھی جب ان سے بات کرنی ہے نا تو آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو سارے امت مسلمہ کٹھی ہے سرکاریوں کی, اس میں سے وہ کون سے, یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی آپ نے پوچھنا ہے. ان کا بھی پتہ کر کے ہی تو پھر آپ نے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی ان کو بھی جو پوری امت مسلمہ کا جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے صاحب, وہ پوچھ لیں ان سے کہ یہ کون سے بہت سیٹس اچھا ہیں. سوال ہے ناصر صاحب کا. ناصر صاحب آپ میں امت مسلمہ میں شامل کرتے ہیں؟ حقیقی تے نہیں ہو تسی, لیکن ہے تو شامل ہی ہو نا ہاں دائرے تو چ. پھر تسی جاؤ, پھر تسی غلط جگہ تے بیٹھے ہو. جاؤ کینوں لبو جا کے نادری دی براڈ تے چلے جاؤ, اتنے بیٹھے نے حقیقی. اچھا اتنے تانوں ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ حقیقی تو میں حقیقی تواڈے سامنے اسی بیٹھے نے. ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਰਾਡ ਨਾਦਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ. जी प्यारे भाई वो पता क्या मसला है असल में, जो नासिर साहब ایک منٹ مجھے بھائی مجھے اوپنائز بھائی کو بتا تو دینے کہ میرے پاس اوپنائز بھائی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, کوئی 5-6 گھنٹے ہیں, اس کے علاوہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ ناصر بھائی بات کریں گے یا احمد بھائی کہاں گئے؟ نہیں, انجلیکا بھائی بات کریں گے. انجلیکا بھائی بات کریں گے ساحل بھائی کے ساتھ, میں کروں گا ناصر بھائی کے ساتھ اس کے چلیں بعد. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایسے تو. ناصر صاحب ذرا ڈنڈ شنڈ پیل لو. اوکے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں نہیں یہ کوئی وہ نہیں ہو رہا, کوئی اس میں نہیں کھڑے ہم. نہیں کوئی نہیں کرنے دینے, مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا, لیکن تسی بھی خلیفہ صاحب پھر ہمت کرنی ہے کہ جواب دینے دے, سارے چھپنا چپنا نہیں جے پیچھے. سر ایسے جواب دیں گے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. پیار سے ایک دوسرے سے جتنے مرضی سوال پوچھیں, لیکن بس پیار سے ہیں, تھوڑا سا کوئی ایسی آوازیں زیادہ نہیں کسنی, زیادہ جملے نہیں کسنے, پلیز جزاک اللہ. جی پیارے بھائی, تو ساحل بھائی اور انگلیکا بھائی, اچھا میں نے جو سوال کیا تھا انجلیکا بھائی سے, جی ایک منٹ رک جائے سال بھائی, ایسے 2 منٹ کرنے ہیں یا ایک منٹ کرنا ہے پہلے بتا دیں. نہیں وہ بات میں صرف بولے ایک نہیں, میں ان کی 2 گھنٹے بات سنوں گا, صحیح ہے نا, میں 2 گھنٹے بات سن لوں گا ان کی, لیکن وہ پلیز میری بات میں بولے نہیں. نہیں ایک وہ ٹائم کا تھوڑا رکھ لیتے ہیں پھر بھی. انگلیکا بھائی میرا ٹائم کا رکھ لیتے ہیں. نام ہے ساحل, ٹھیک ہے, آپ مجھے ساحل کہہ کے مخاطب کریں. درست ہے جناب, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا جی سال بھائی, آپ نے ایک سوال کیا تھا, اس پر میں جواب دے رہا تھا, اور پھر بیچ میں آپ کو پتہ کچھ ہو گیا. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اب جو ہے نا, آپ توہین کرتے ہیں تمام کرسچن کی, ٹھیک ہے, ان کے انبیاء کے پاس ایسے معجزات ہیں جو کہ مسلمان بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور خاص طور پر مرزا انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ جیسے معجزے لا کے تو دکھاؤ, ٹھیک ہے, اور آپ اوپر سے یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمارے نبی جو سب سے افضل ہیں, تو ان کی توہین ہوگی سیدھی سیدھی, ٹھیک ہے, یہ توہین تو آپ بھی کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی انبیاء کی طرف میں آ جاتا ہوں, لیکن پہلے مجھے اس کا جواب دیں, جزاک اللہ. میں سوال کیا تھا انجلیکا صاحب آپ سے, سوال میرا کیا تھا کہ کسی انبیاء کی اس کو درجہ دینے کے لیے کسی دوسرے کے انبیاء کی توہین کی جا سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے اس کو اس سے جواب دیا کہ دیکھیں وہ تو آپ کے ذوق میں ہوگی توہین نا, کیونکہ عقیدہ بناتا نا ایک آدمی. اب جیسے کرسچن نے عقیدہ اپنا بنا لیا کہ جو ہمارے منجی ہیں وہ ہمیں نجات دیں گے, ٹھیک ہے, منجی جی, چلیں جو الفاظ میں غلطی ہو گئی, نجات دہندہ, ٹھیک ہے, وہ انہیں ان کے نزدیک وہ جنت میں لے کے جائیں گے, اور ان کی سب کی جو گناہ ہے وہ دھا کے لے کے جائیں گے اچھی طرح واش کر کے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں ایسا کر سکتے, یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کریں گے, اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کافر مار جائیں گے, آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگی, آپ نے توہین کر دی ان کی اپنے نبی کے آڑ میں, آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اچھا توہین ہوتی ہے, اس پہ آپ اپنے اس اصول پہ اسٹینڈ کریں گے کہ ایسے پھر جائیں گے؟ پہلے یہ بتا دیں پیارے بھائی, آپ نے جواب آپ اپنے اس نجات دہندہ کے اصول کے اوپر کہ اگر کوئی شخص کہے, میں تو اس کو توہین نہیں مانتا ہوں, یہ تو آپ مانتے ہیں, میں تو مانتا نہیں ہوں. کیا نہیں مانتا؟ میں تو اس کو توہین نہیں مانتا ہوں نا, توہین تو آپ مانتے ہیں. تو سوال مجھ پہ کیوں رکھا پھر آپ نے؟ کیونکہ آپ مانتے ہیں
तौहीन क्या? मैं तो मानता नहीं हूँ ऐसी तौहीन क्या तो इन मानता हूँ कि किसी पुराने अंबिया की वो दर्जा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये तौहीन हो गई। दर्जे की बात तो मैंने की नहीं है। अंजलिका साहब, आप मेरा मैंने सवाल सुन दर्जे रहे के हैं? कानों में बगैर हैंड बात फ्री लगाए हुए हैं कर, आपने? मैंने दर्जे को रखा ही नहीं, मैंने आपने दर्जा सेट कानों रख में दिया। हैंड फ्री लगाए हुए हैं कि सिर्फ माइक पे बोल रहे हैं? साहल भाई मैंने हैंड फ्री लगाई, मैं आपकी बात बगौर हैंड फ्री लगाई है। मेरा सवाल ये था आपसे कि किसी एक नबी की शान को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे नबी की शान में गुस्ताखी या तक या उसके बारे में ऐसे लफ्ज बोले जा सकते हैं जिससे ये बात निकल सके कि उसकी गुस्ताखी हुई है? दर्जे का तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया। आप किधर हवाओं में घूम रहे हैं? जी प्यारे भाई सवाल हो गया? जी हो जवाब गया। देता हूँ। जी जी। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, और मुझे पता नहीं चल रहा मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि आपने जो एतराज करते हैं वो अपने अकीदा के मुताबिक करते हैं या अपने अकीदा से बाहर निकल के करते हैं, ठीक है? आप कौन सा करते हैं- इतराज? जो भी आप एतराज भी कर रहे हैं कि कोई तौहीन कर सकता है या मैं नहीं कर सवाल सकता। पूछ रहा हूँ, कह रहा है इतराज। जनाब मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ, आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी आप मैं फिर सवाल पैदा करेंगे, मैं फिर सीधा पूछता हूँ, अगर आपको नहीं ना समझ आ रही मैं जी पूछता हूँ। मुझे आपको कि समझ नहीं आ रही। एक शख्स वही अल्फाज हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में बोले और वो आपको लगे कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है और ये बदज़बानी है, शातमियत है, अगर वही अल्फाज कोई मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब के बारे में बोले तो क्या वो भी वही शान में गुस्ताखी होगी या नहीं होगी? जी प्यारे भाई, आपने सवाल किया कि कोई अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करे और वही अल्फाज इनकी तरफ करे। लो जी मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ, जब आपने 20 मिनट बाद बात करनी मैं पहले कर देता हूँ। कोई भी अहमदी, हाँ वो आलिम हो या गैर आलिम, आपने क्लियर स्टेटमेंट लेनी है अहमदी से कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र मुबारक कुरान पाक में है, आप उनको क्या समझते हैं? किसी की तौहीन ले आए ये सवाल करके, तो जनाब जो आप जुर्माना करें जैसे आप करें, बल्कि मैं जमाती अहमदी छोड़ दूंगा, चले जाएं और सवाल इससे क्या मतलब आपका कि कोई भी अहमदी वो अगर कुरान पाक में मौजूद ईसा इब्ने मरियम उसकी शान में बात करे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ईसाई के यसु, हालांकि मैं ये अभी बात सिर्फ फर्ज महाल रख रहा हूं, लेकिन जिस ऑडियो के ऊपर कल आपने जो अपने डबल स्टैंडर्ड दिखाए थे वो कोई ईसाई नहीं था, वो कोई यहूदी नहीं था, वहां पे मकाबल पे बैठा हुआ था एक मुसलमान, और एक मुसलमान के नजदीक ईसा इब्ने मरियम वही हैं जो कुरान मजीद के अंदर है। अब उस ईसा इब्ने मरियम के मुकाबल पर अगर कहा जाए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम मेरे इमाम महदी के तौबा नौज़बिल्ला जूती के बराबर है, तो अगर वही स्टेटमेंट मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के बारे में कही जाए तो क्या वो आपको सही लगेगी? ये सवाल है मेरा। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया, लेकिन बहरहाल इसका मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ। जब आप किसी बात को पैनल से निकाल कर बात करेंगे ना, अभी यही चर्चा वहां पर भी हो रहा था सीकर की ब्रॉड पर, जिसका आपने भी तज़किरा किया, वहां पर तो मैंने भी ये कहा कि जो नादर साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब नादर साहब के पास चले जाते हैं और पूछते हैं कि जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक में मौजूद है। मैंने इस वजह से आपको कहा था कि आप हैंड फ्री निकाल के ना बात सुन रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या सारी बात का इल्म है ना प्यारे भाई, आपको ये नहीं पता कि वो ऑडियो ऑडियो नादर की थी या मसरूर की थी, आपको ये नहीं पता। आप यहाँ पर बैठ के उनकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और कल जब वही बात और सिर्फ सवाल पूछने के ऊपर कि क्या यही अल्फाज मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के बारे में अगर कोई बंदा यूज करे तो आप क्या करेंगे, तो वहां से आप उठ के चले गए थे और हजरत ईसा इब्ने मरियम के ऊपर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स आपके दोगलापन क्यों है अंजलिका साहब आपका? माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, और मैं इसको बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहूँगा, ठीक है? ये आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। मैं इस वजह से नहीं गया था, वो 10 बार भी ये सवाल करते ना, 20 बार भी करते, तो मैंने जैसे आपको खुली स्टेटमेंट दी है कि मैं उसको लानती करार दे देता जो आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये ऐसी बात करता। उसके बाद उन्होंने मिर्जा साहब पर शातमियत शुरू कर दी, ठीक है? मैंने फिर कहा कि मैं इस बरात से अच्छा, उन्होंने शातमियत शुरू कर दी सवाल पूछने पे, उन्होंने शातमियत शुरू कर दी सवाल पूछने पे, शातमियत का फतवा। और जो बंदा अलल-अलान वहां पे कह रहा था कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम मेरे इमाम महदी के
तौबा नौजुबिल्ला जूतों के बराबर है। वहां पे शातमियत नहीं, वहां पे आपको तवील चाहिए कि वो किस ईसा इब्ने मरियम की बात हो रही थी। अच्छा, किस ईसा इब्ने मरियम की बात हो रही? कुरान तो कहता तुम किसी के झूठे खुदा को झूठा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली न दे दे। तो अगर तुम यसु को सच्चा नहीं समझते तो तुमने फिर यसु को गाली दे सकते हो? जी प्यारे भाई, इससे पहले कि इसको हम कुरान से पूछेंगे, ठीक है? तो जब हम कुरान से इसका जवाब लेते हैं ना प्यारे भाई, तो हमें ये मिलता है कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने जाकर बुत को तोड़ दिया, ठीक है? और क्यों तोड़ा? अब ये आगे रवायात में बात मिलती है, इसका जिक्र मिलता है। और अगर ऐसा ही है जैसा आपका नज़रिया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें बिल्कुल भी वो अमर नहीं करना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था, वरना तो वो आपके सच्चे खुदा को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तोड़ देते, ठीक है? और दूसरी बात, माशाल्लाह माशाल्लाह अंजलिका साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने उन लोगों को खुली छूट दे दी जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं मानते, कि वो जिस तरह उनकी मर्जी है, जिस तरह उनका चाहे है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुखातब करे। तो फिर आपकी कल जल क्यों गई थी, बात क्यों गए थे फिर कल, जब आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत तोड़ना जो अमल था वो इस आयत के बिल्कुल भी मुखालफ नहीं था, बिल्कुल मुताबिक था कि किसी ये झूठे खुदा को गाली ना दो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली ना दे। इसका मतलब ये है कि आज कोई भी बंदा उठ के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में वही अल्फाज यूज करे जो मसरूर ने हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में यूज किए थे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हमारे आने वाले मेहदी की जूती के बराबर नहीं है। ये ठीक है, ये जस्टिफिकेशन होगी ना आपकी तरफ से? जी प्यारे भाई, एक तो अपना थोड़ा सा लफ्जों का ख्याल कर लें। मैं आपको प्यारे भाईजान वही लफ्ज जो हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में बोले वही बोल रहा हूँ, कोई अलग से लफ्ज नहीं बोल रहा मैं। नहीं, आपने वो जल गई, फट गई और इस तरह के पता नहीं कैसे। हाँ, तो आपको आपकी जली तो आपके गाल निकले ना, आपने कहा अल्लाह हाफिज हमेशा के लिए, प्यारे भाई पक्का पक्का जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए। ये क्या था ये? जी साल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बाद खुद का जो वो तबसरा कर रहे हैं हजरत मसीह इस्लाम पर, उसकी वजह से मैंने कहा कि मैं वही तबसरा यार, वही अल्फाज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में बोलेगे, वही अल्फाज हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में बोलेगे। दोनों में आपको जो जलन हुई वो मिर्जा साहब पे हुई। इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की शान ज्यादा है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान कुछ नहीं आपके नजदीक? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम तमाम अंबिया की इज्जत। तो फिर क्यों नहीं कल क्यों आपको जस्टिफिकेशन क्यों तवीलें करनी पड़ी थी हजरत ईसा इब्ने मरियम के हवाले से? मैं आपको इसका एक और तरफ अगर आपको समझ नहीं आ रही, अब मुझसे आप सवाल करें कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो उनका कलाम पाक में जिक्र है, अगर उनके बारे में कोई अहमदी या कोई भी, सही है, मेरा मुहद्दिस मुफक्कर कोई भी बदज़बानी करे तो मेरा फतवा ले लें। सवाल पूछने लगा हूं। अगर कोई मुसलमान अंजलिका साहब आपके सामने आके हजरत ईसा इब्ने मरियम जो उनके अकीदे के मुताबिक आसमान पे हैं और कुर्बे क़यामत दोबारा ज़मीन पे उतरेंगे आसमान से, उनके बारे में कोई अहमदी अगर ये कहता है कि आपके वो ईसा इब्ने मरियम मेरे इमाम मेहदी के जूती के बराबर भी नहीं है, तो ऐसा अहमदी गुस्ताख है, शातम है या नहीं है? जी प्यारे भाई, अब मैं अपने अल्फाज महफूज कर लीजिएगा। जो जैसे आपने बात की है, अगर किसी ने इसी लहजे में जाकर यही सवाल रखा हो और किसी अहमदी ने ये बात की हो आगे से, ठीक है, तो वो गुस्ताख है। लेकिन साबित ये करना होगा कि जैसे आपने सवाल किया वही उसने सवाल किया था, ठीक है? इसके पैनल में आगे पीछे कोई दूसरी बात उसने नहीं। ठीक है, बस ठीक है। कल जो आपको ऑडियो सुनाई गई थी वहां पे जो बंदा बैठा था, जो बंदा मुकाबल था, वो क्या कह रहा था कि मेरे चले आप उनको मेरे दोस्त कह लें, किसको? ईसा इब्ने मरियम को। तो आपके जो मसरूर साहब जो आपकी जमात के एक हेड बनाए जाते हैं यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर, जिनको आप कहा था कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो जाके वहां से पूछे, उन्होंने उसके ऊपर क्या जवाब दिया था, जरा आप अपने मुंह से बताएं। अब प्यारे भाई, मैंने उनसे तो साफ साफ बात ये की थी कि अगर किसी भी अहमदी से सवाल आपने करने हैं तो आप अहमदी ब्रॉड पर चले जाएं और उनसे सवाल कर लें। अंजलिका साहब, मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल ये पूछा है कि उस मुसलमान के मुकाबल पर जब उसने कहा था कि मेरे ईसा अलैहिस्सलाम को आप मेरा दोस्त समझ लें, उसके बारे में बताएं, तो आपके मसरूर साहब ने उस ईसा इब्ने मरियम के बारे में उसको क्या कहा था? जवाब दें। कल रिकॉर्डिंग सुन के गए ना आप 2 दफा, बताएं क्या कहा था। जी प्यारे भाई, अब उस रिकॉर्डिंग अगर सुनते हैं तो उसमें जो बंदा है ना, आपको पहले पता नहीं, वो मुझे जो लगता है वो अहले तशीस है बराबर, मुझे ये नहीं पता, लेकिन फिर भी वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो इमाम मेहदी होंगे ना वो तो आम इंसान होंगे,
ठीक है, उनकी पहली स्टेटमेंट ये है, ठीक है। अब ओके, उसका ठीक जो है। जी, अब उसका जो है ना सारा वो दीन या उसकी जो हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, वो नबियों के खिलाफ जा रही है, ठीक है। अब उस पैनर में जिसको रख रहे हैं ना, उस पैनर में उसको हम सिर्फ जो मसरूर साहब ने या जो भी आप नाम ले रहे हैं उन्होंने उसको डिनाई किया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। अंजलिका साहब, आपको मैंने पहले कहा था कि जो बात भी कह रहे ना उसके ऊपर स्टैंड लेने का ना हिम्मत रखा करे। अभी आप कह रहे हैं जो बंदा वहां पे बात कर रहा था कि वो लग रहा था अहले तशी और वो इमाम मेहदी को एक आम इंसान समझ रहा था। अंजलिका साहब, जब आपको पता ही नहीं कि अहले तशी के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो उनको आम आदमी समझते हैं, तो आप बिल के बिठा के तेरा हवाई फायरिंग करते चले जा रहे हैं। ना आपको सर का पता, ना आपको पाँव का पता, बस करना क्या है किसी तरीके से मैंने उस मसरूर की जस्टिफिकेशन देनी है कि उसने जो कहा था ठीक कहा था। क्या अगर कोई शख्स आके कहता है कि इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान जो हैं वो एक आम इंसान है, हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो है जो आसमान से दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे वो नबी होंगे, तो क्या उसके मुकाबले पे ये कहना कि तुम्हारा ईसा इब्ने मरियम मेरे इमाम मेहदी की तौबा नौज़ुबिल्लाह जूतियों के बराबर है, ये ठीक है? प्यारे भाई, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये दूसरे की बात है जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। ये जो मेरे अकायद है जिसका पता है उसके बारे में आपके लब कुशाई नहीं हो रही। मैं आपके अकायद के मुताबिक सवाल करता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे दें। मुझे एक फर्द ने क्या किया है जमात अहमदिया के, मुझे इल्म अंजलिका भाई, जिस बंदे के पास, जिस बंदे का ये हाल हो कि उसके नजदीक अगर हजरत ईसा इब्ने मरियम की शान में गुस्ताखी हो तो वहां पे उसको बहाने चून चना अगरचा मगरचा चुनाचा करना पड़ रहा है, और वही बात अगर सेम अल्फाज अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में बोले जाएं तो वो बंदा कहे कि यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की शान में गुस्ताखी हो गई है, लिहाजा मैं यहाँ पे से उठ के चला जा रहा हूँ। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स वाले को मैं क्या जवाब दूं? जी प्यारे भाई, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आप कैसे जवाब देंगे, आपको तो इल्म ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपके दिल दिमाग और हर जगह पर आप सबको कैसे देखते हैं और किस तरह समझते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि पता है कि अहमदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की से मोहब्बत रखते हैं और उन्हें एक नबी मानते हैं, ठीक है, और तमाम अंबिया की जो हम हैं वो इज्जत एहतराम करते हैं, ये मुझे इल्म है। और जो उन्होंने कोई बात की है वो किसी और पैनल में की है, आप उसको बात को घुमा के यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अंजलिका साहब, आपकी कल की रिकॉर्डिंग लगी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। अगर नहीं चाहते कि वहां पे आपका जो है ये जो है ना आपका दो रंगी ना खुले, तो सीधे अल्फाज में जो कल आपके सामने जो चीज रखी गई थी कि जिस ब्राड को जिस लाइव के ऊपर आप बैठ के कह रहे थे कि यहाँ पे ये गटर है, गलीज जगह है, उस ब्राड के बारे में आप ये कह रहे थे, और जिस ब्राड के ऊपर जाकर सवाल करने पे वहां पे आपको हज़रत ईसा इब्ने मरियम की शान में गुस्ताखी दिखाई गई थी, वाज़े कह दे कि हाँ वहां पे ये गुस्ताखी हज़रत ईसा इब्ने मरियम की कही हुई है, तो मैं कोई वीडियोस नहीं लगाता ताकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो आपका दो रंगा चेहरा ना देख सके। बता दें मुझे क्या करना है। आप 120 मरतबा वो मेरी ऑडियो लगाएं, वो जो आपके पास है वो लगाएं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। मैंने बारहा यहाँ पर ऑडियो में बैठ अगर कोई भाई नीचे बैठा हुआ तो कोई चले लगाते हैं, अभी लगा देते हैं। अच्छा, नीचे कोई भाई बैठा हुआ जिसके वो जो ऑडियो चला सकता है, प्लीज अगर कोई ऊपर आ सकता है तो वो करा के। बात तो आपसे हो रही है ना, वो आप बाद में लगा के सुना दीजिएगा। जो नहीं, अभी सुनाएंगे ना, अभी सुनाएंगे। क्यों ये चल रहा है? अंजलिका भाई, अंजलिका साहब, सुन ले बात। अंजलिका साहब, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा इसके बाद आपके साथ किसी और तरह पे किसी और मौजू पे बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स और अंबिया अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल है उनकी शान में वो कंप्रोमाइज करने वाला, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो कि मुतनाज़िया फी शख्सियत है हम दोनों के दरमियान, दोनों पार्टियों में, उसके ऊपर आपको इतना जो है वो हो जाता है। तो अभी जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे किसी बात के ऊपर बात नहीं हो सकती मेरे भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं, रिकॉर्डिंग तो सुन के जाए ना। वो मैंने खुद बात की है, आप रिकॉर्डिंग इनको सुना दें ना सर, रिकॉर्डिंग नहीं, दोनों रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है। साल भाई सुन ले, मैंने दोबारा अपनी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि जो भी अहमदी, उसमें बेशक वो मेरी हस्तियां भी आ जाएं, जो हजरत ईसा इब्ने मरियम जो कुरान वो भी अहमदी नहीं, मसरूर का नाम लेके बोले जिसने ये बोला है, जो भी अहमदी नहीं, मसरूर ले जी, मसरूर बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है तो वो लानती शख्स है, बात खत्म, ठीक है। उसके अलावा मैं ये आपसे बार बार कर रहा हूँ कि उन्होंने कि जिस पैनल में बात की है वो पैनल आप जाकर देख लीजिएगा, या उनसे जाकर सिंपली सवाल कर ले। मैं सवाल कर लूंगा आज जाकर, आप जब ब्राड लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे सवाल कर लूंगा कि कुरान पाक के जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है
उनके बारे में आपकी फुल स्टेटमेंट दे दें क्या है, ठीक है, वो मैं आपको पेश कर दूंगा। मोहम्मद जाहिद अगर भाई, अगर उनका आप ऑडियो अकीदा चला सकते हैं मसरूर की तो चलाइए। प्यारे भाई आप चला देना जो भी है, आपको अगर कोई मसला है, लेकिन आप क्यों, मेरे पास आप दूसरा ये मोबाइल क्यों नहीं नहीं है बताते कि इसके आप क्यों भाई तौहीन करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? सॉरी टू इंटरप्ट यार, आप ये क्यों ऐसे मेयार सेट कर रहे हैं कि बाद में कोई भी लगा के गालियां दे, तो आप ही मेयार ना सेट करें। आप क्यों इतने हुस्न ज़न में पड़े हुए हैं कि जनाब उन्होंने इसी पे राय में की होगी या नहीं की होगी? आप क्यों मतलब उनके पीछे, मसरूर साहब के पीछे पूरी जमात को वो या उनके लिए स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि ठीक है इट्स अलाउड, छोड़ें परे आप। जी ओपन अली भाई बात सुने, क्योंकि मैं अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है अहमदियों का, ठीक है। आप चलें, ओपन मेरा अली भाई, मेरा चैलेंज है आप सबसे कि आप वो और सर मसरूर एक साहब मिनट जो है ना, चैलेंज, सर एक उनसे- मिनट चैलेंज बाद में दीजिएगा, बाद में अंजलिका साहब तो चैलेंज करने कीजिएगा बाद में, चैलेंज कीजिएगा बाद में। आप अभी चैलेंजिंग पोजीशन में नहीं हैं, अपने आप को बिला वजह चैलेंजिंग पोजीशन में ना लाएं, ठीक है, क्योंकि साहिल भाई ने आपसे बड़े आसान तरीके से बात की है। मेरा तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा बात यह है कि वो नासिर साहब किधर गए हैं जिन्होंने अगला मुनाजरा करना था, वो तो मेरा ख्याल है पतली गली पकड़ के निकल गए हैं। ये कहना भी मुनासिब नहीं है क्या? जी वो यार पता भाई, है, ऑडियो उन्होंने लगा पहले सकते से हैं, बात की सुनना, तबलीग लगा यही दी है बात है। अब उन्होंने सवाल किया, साल साहब उनका जवाब देंगे जी। तो प्यारे भाई उसका वजह यह है कि ये भाई आए मेरे थे पास है रिकॉर्डिंग, मेरे पास है रिकॉर्डिंग। और रुक तो जाएं जनाब, ठीक आपकी है। रिकॉर्डिंग लगा देंगे रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है, इधर ही सारे। तो साल साहब आए थे कि मैं यहाँ पर बात करने और ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। जब मैंने कह दिया अल्फाज बोलूं कि वो ले हमारे इमाम मेहदी जो आने वाले उनकी जूती के बराबर नहीं है, तो आपने क्या कहा कि बिल्कुल ये वही अल्फाज हो, यही कहा था आपने। अली खाना तो कर दे। अच्छा मुझे बताया ना, मैं आपको 10 मिनट दिए थे। जी जी बिल्कुल, ये इधर ले गए अब। हाँ, अब ईसा इब्ने मरियम कौन है? हज़रत ईसा इब्ने मरियम जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल थे, नबी थे। फौत हो चुके, मतलब आपसे कोई पूछे किसी बंदे का नाम तो आपके वहाँ वो जिंदा है या वो फौत हो गया? भाई मैं पूछ रहा हूँ वो कौन है ईसा इब्ने मरियम? अल्लाह के रसूल है सच्चे, अल्लाह के रसूल है सच्चे 100%। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और अगर उनके लिए कोई अल्फाज बोले कि वो इमाम मेहदी की जूती के बराबर है, ये वही अल्फाज बन जाएगा कि नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई बोले, हाँ जी, जैसे मिर्जा साहब के बारे में मैंने बोले थे तो आपने कहा गटर होगा, ये भी गटर होगा। हज़रत ईसा के बारे में अगर कोई बोले तो अगर तो बिल्कुल इन्हीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कुरान करीम में है उन्हीं की तरह मंसूब करके कहता है तो वो अच्छा, वो जो कुरान करीम में है। अच्छा, ईसा इब्ने मरियम, सुन ले जी, स्टेटमेंट सुन ले मेरी, वहाँ पे वाज़े आ गई, स्टेटमेंट वाज़े है प्यारे भाई। अच्छा, बाइबल में ईसा इब्ने मरियम है दोस्तों। एचडी जी जी प्यारे भाई आगे स्टेटमेंट वाज़े है, मैंने कहा वो भी गटर है। ले क्यों, कौन सी स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं? ना करेंगे यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, सही है। मैंने खुद स्टेटमेंट वहाँ पे दी है कि हाँ अगर वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं जो कुरान पाक में है तो वो एक मिनट सब्र करें ना, फैसला तो करें। साहब अब वहाँ पे क्या आगे कोई डाल के चुनेंगे, लोग सुनेंगे, फैसला कर लेंगे। आप अपना माइक बंद आप अभी लोगों को ही सुनाएंगे, सही है। आपका दजल फ्रेब यहाँ पे वाज़े हो गया है। मैंने कहा कि अगर वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कहता तो वो भी गटर है। इतना परेशानी किस चीज की लाक हो गई? आप अपना माइक प्यारे बंद भाई करें, झूठ लोग फैसला कर लेंगे। खबर करें, माइक अभी चुप करें, रिकॉर्डिंग चला दें। जाहिद भाई आप चला दें रिकॉर्डिंग, इसको अब बोलने 2 साल रिकॉर्डिंग चलाएं, मैं काल सुन कर आता हूँ, मैं काल सुन के आता हूँ। ये है डबल स्टैंडर्ड्स, इसको कहते हैं असूल का बलात्कार। नहीं, अंजलिका भाई ने अभी कहा बाइबल में ईसा इब्ने मरियम है। बाइबल में ईसा इब्ने मरियम, तो और कट्टा खोल दिया, इनको पता ही नहीं चला इन्होंने किया क्या। भाग क्यों गए? इनको बुलाया जरा दोबारा। वो तो यीशु नहीं थे। प्यारे भाई मैं वही कह रहा हूँ, आप तो घुमा के ले जाते अब देखें कि मसरूर के ऊपर नहीं बोल पाएंगे, मसरूर को तो वही है ना, हम तो नहीं मानते। अच्छा एजलिका भाई, आपने जाना तो नहीं ना आज जाना तो नहीं ना आपने? नहीं, आज मैंने कट्टा खोल के जाना है। आज आपने कट्टा खोल के जाना है। आज तसल्ली से बैठे मेरे पास, आपको शायद लेट आए आप टिकटॉक पे, लेकिन आप यकीन करें आपने गलत ब्रॉड पर। साहिल भाई भाग गया, वो क्या करना है? रिकॉर्डिंग सुनाए पूरी सुनाए। चलें रिकॉर्डिंग में पूरी प्ले कर देता हूँ। बंदा भाग गया, वैसे गलत मसला छेड़ दी, पता आपको इस बात का। आप जरा गौर से सुनिएगा, दोबारा सुने मेरे भाई बात को जवाब देना तो ताकि मैं सवाल खुले ना।
चले हमारे वो दोस्त कर ले, चलो हमारे वो दोस्त कर ले। मेरा सवाल था कि हमारे नबी को अगर जवाब देने लगा हूँ भाई, हूँ जवाब देने लगा। अच्छा, आपके दोस्त का मुकाम जो है ना वो इमाम मेहदी की जूतियों के बराबर है। हजरत ईसा को आपने कर दिया इमाम मेहदी की जूतियों के बराबर, आपने कहा वो मेरे दोस्त लगेंगे। आपका जो दोस्त ईसा इब्ने मरियम है वो इमाम मेहदी की जूती के बराबर है। इमाम मेहदी कोई नबी तो नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी है। तो इमाम मेहदी नबी है, वो हजरत ईसा नबी नहीं आपका तो। जी एंजेलिका भाई वॉशरूम है कि नहीं? थोड़ा और सुनाएं, मैं समझ लेता हूँ, आप आगे सुनाएं थोड़ा सा। अस्तगफिरुल्लाह मेरे अल्लाह। राज भाई एक मिनट बात कीजिए, राज भाई तमाम नबी है ना। जी जी राज भाई एक मिनट रुकिए। ये देखें यहाँ पे भी अंजलिका साहब ने इस जगह बैठ के भी किस तरह से दजल किया है। कहता है कि उस शख्स ने कहा था कि इमाम मेहदी जो है वो आम इंसान है, ठीक है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी हैं। तो इस लिहाज से ये कहना चाहे वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम थे, ये मसरूर का जस्टिफाइड था। अब यहाँ पे अंजलिका साहब बताएं कि वो जो बंदा कह रहा था वो कोई ईसाई था जो यसू को लेके आया था उसके सामने, या कोई मुसलमान था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखता था कि वो अल्लाह के नबी हैं और इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान जो है वो नबी नहीं है? क्या किसी ईसाई को वो तो कहा था उसने? कौन सी ईसा इब्ने मरियम की बात हो रही है यहाँ पे? जी अंजलिका साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया काफ़ी देर के बाद। लेकिन पहले सबसे पहले आपका दजल फ्रेब वो जाहिर हो गया। मैंने उसी स्टेटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर स्टेटमेंट दी है कि वो बंदा भी गटर में गया जिसने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को किया कहा। ठीक है, स्टेटमेंट वाज़ेह है। आप मौका दें प्यारे भाई, मौका दें। आपने 20 मिनट ऑडियो चलाई, 25 मिनट तकरीर की, मैं खामोश रहा। अपना भाई ये ले, ऐसे बात होती भाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपकी 20 घंटे सुननी है, आप मेरी 1 मिनट नहीं सुन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे फिर शुरू किया और मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी है, आज फिर मैंने स्टेटमेंट दी है कि वो गटर है जो ये कहता है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब। अब बात जो साल भाई ने की उसके तरफ आते हैं कि क्या उनके सामने जो वो बैठा था वो क्रिश्चियन था। तो प्यारे भाई आपके आधे से ज्यादा अकायद क्रिश्चियनों वाली हैं, सही है। क्रिश्चियन तो बलबला ऐलान करते हैं ना, तो आप उनके अकायद के पीछे सफ़ात के लिहाज से सारा कुछ के लिहाज से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, लेकिन ऐलान नहीं करते। वो तो ऐलान करते हैं, सही है। सफ़ात में आपसे भी पूछ लेता हूँ, मेरा चैलेंज है आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा की डिबेट नहीं हो रही भाई। मोहम्मद भाई चुप कर जो, मोहम्मद भाई इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, इसको बोलने दो। भाई जिससे बात हो रही है वो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानता है उसी की बात होगी ना। वो क्रिश्चियन होगा या मुसलमान हो या बोलो 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 आदमी आ जाए, सही है। एक यहूदी आके ये बात सफ़ात के साथ आ जाए और जो ना कहीं पर जस्ट होती हो, ना कुरान में ना हदीस में, अपना ही उसका फाहम हो, तो वो तो बंदा ही दूसरा जाता है, ठीक है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था प्यारे भाई कल भी, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि इसको मुझे सुनाएं, मैं अच्छी तरह सुनूंगा। हाँ, अगर उसमें अल्फाज हुए तो मैं यहाँ पर खुली स्टेटमेंट दे के जाऊँगा कि मुझे मसरूर है या नासर है, जो भी है वहाँ पर मसरूर है वगैरह, भाई वो गलत बोल रहा है, वो गटर है, ठीक है। मुझे इसमें कहने में क्या आ रही थी, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई 1 मिनट दीजिए, जाहिद भाई 1 मिनट दीजिए। अब आपने कहा कि वहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा था कि वहाँ पे कोई ईसाई बैठा था या मुसलमान बैठा, तो आपने कहा कि आपके भी तो आधे से ज्यादा कायद क्रिश्चियंस वाले हैं। ओके ठीक है, आपने कहा, हमने कहा बिलफर्ज महल, ठीक है। अब क्या अगर हमारे आधे से ज़्यादा अकायद क्रिश्चियंस वाले हैं और हम ईसा इब्ने मरियम की बात आपके सामने कर रहे हैं, तो उसके मुकाबल पे आपका ये कहना कि आपके ईसा इब्ने मरियम, आपके ईसा अलैहिस्सलाम हमारे इमाम मेहदी की तौबा नौज़बिल्ला जूती के बराबर हैं, ये कह के मसरूर ने गटर वाला काम किया है या नहीं किया, ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। ऐसे करते हैं साल भाई, आज आप मैं और आप दोनों चलते हैं और दोनों जाकर मसरूर साहब की वहाँ पर बराबर पर बैठकर तो हम इससे पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या मसला है? आप मुझे अपना यहाँ पे बताएं। मसरूर मेरे नज़दीक गटर है, था, रहेगा। मुझे उससे जाके किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आप यहाँ पे उसको कर रहे हैं डिफेंड। आपने मुझे बताना है ये अल्फाज बोल के आपके नज़दीक मसरूर जो है वो गटर है या नहीं है। जी बहुत शुक्रिया साल साहब, आपने मुझे फिर मौका दिया।
लेकिन क्योंकि आप पता नहीं हैंड फ्री नहीं लगाते हैं या फिर जब आप सवाल करके भाग जाते हैं, मैंने ये कहा कि ये बात जिस बंदे ने की है ना उसके पास दोनों भाई चलते हैं, उससे जाके पूछ लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या बात है, वो मतलब माफ करे वो जिंदा है ना, अभी कौन फोत हो गया, ठीक है, चलते हैं जाके पूछते हैं। अंजलिका साहब, आप अंजलिका चलिए मेरे साहब, साथ, मैं आपके साथ अंजलिका चलूंगा। साहब, चलते हैं। अंजलिका साहब, नहीं मुझे इसका अंजलिका जवाब दें, साहब, इसका जवाब दें, जो अंजलिका मैंने सवाल साहब, किया। ये जो है ना, ये हेरा फेरियां, ड्रामेबाजियां, ये मेरे सामने नहीं चलेंगी। आपके बड़े बड़े जो है ना वो मुरब्बी जो है ना वो इस चीज से जो है ना वो भाग चुके हुए हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जिस ब्राड का नाम लेके, जिस ब्राड का नाम लेके ना, आप जिस ब्राड का नाम लेके कह रहे हो मुझे चले वहां पे चलते हैं, वहां पे जाइएगा, वहां पे जाइएगा। सवाल सुने, मैं आपकी बात में खामोश रहा ना, झूठी बातें की आपने, गलत बातें की, धोखे किए, ड्रामे किए, मैं चुप रहा ना, चुप कर जाए, देखें ऐसी आपने चुप कर जाए, चुप कर जाए। अंजलिका साहब चीखे ना मारे, चीखे ना मारे, मैं आपकी चीखों का दर्द महसूस कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं आपकी चीखों और दर्दों का महसूस कर सकता हूँ, इस तरह ना करें। जहां पे आप मुझे कह रहे हैं ना मुझे चले मेरे साथ, वहां पे जाके सिर्फ मेरा नाम लीजिएगा और पूछिएगा कि साहिल कालो ने आके सवाल करना है, आपको ब्लॉक ना मार दिया गया तो कहना चले मेरे साथ। आपके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं है कि एक बंदे की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के ऊपर उसके ऊपर कोई फैसला दे सकें, और बंदा कोई दूसरा बैठा हो गैर अहमदी और वही वो लफाज मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के बारे में इस्तेमाल करे, तो आपको लगता है यहाँ पे ये गलीज जगह है। जब तक आप इसे अपने डबल स्टैंडर्ड से बाज नहीं आएंगे, जब तक एक रंग नहीं होंगे, आपके साथ हर लाइफ के ऊपर यही होगा, जहां जाएंगे हम आपके पीछे आएंगे। जी भाई कोई करना चाहता बात कर ले। जी कालू साहब, जीशान भाई, ओपन भाई, माजरत, मैं माजरत कर रहा हूँ कि देखिए मैं इस बात के ऊपर नहीं कि उनका हमारे साथ अकायद के अंदर इख्तलाफ है तो मैं इस वजह से उनके साथ जो है ना वो कर रहा हूँ। भाई नबी तो आप भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना, हम भी मानते हैं, लेकिन वहां पे अगर उनकी शान में कोई बंदा ऐसा पंगा ले, वहां पे आप जल आग बगोला हो जाएंगे, ये क्या बात हुई? अच्छा, ये ना नीचे फुरकान के चाहने वाले आए हैं, तो मैं फुरकान साहब को ना एक छोटा सा पैगाम देना चाहता था। राजपूत भाई, फुरकान से कहिएगा कि 10 मिलियन जोन से ना 10 मिलियन मेरे से ले ले, तो बस अपने आप को ना फुरकान इंसान साबित कर दे जस्ट। हाँ जिशान भाई देखे ना, अभी ये